ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਿਬਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ ਕੱਲ ਰੋਈ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਮੈਣ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਉੱਠ ਦਰਦਮੰਦਾ ਦਿਆ ਦਰਦਿਆ ਉੱਠ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਬੇਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਭਰੀ ਚਨਾਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾ ਐਸ ਜ਼ਰਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੂਲੂ ਫੁੱਟਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਚੜੀਆਂ ਲਾਲੀਆਂ ਤੇ ਫਿਟ ਫਿਟ ਚੜਿਆ ਖੈਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਹੂ ਵਸਿਆ ਕਬਰਾਂ ਪਈਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਣ ਅੱਜ ਸਭੇ ਕੈਦੂ ਬਣ ਗਏ ਹੁਸਨ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਚੋਰ ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਲੱਭ ਕੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। Assalamu alaikum and welcome to the Great Sufi Saints, where we embark on a spiritual journey through the annals of history. Today, join us in uncovering the timeless legacy of Hazrat Waris Shah Rahmatullah Alayh, a beacon of love and wisdom in the Sufi realm. Hazrat Waris Shah Rahmatullah Alayh, a revered Sufi saint, poet and mystic, left a permanent mark on the spiritual landscape. In this video, we will explore his life, his contributions, and the everlasting impact of his masterpiece. Heer Ranjha. ਵਾਰਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਖੂਪਿਆ ਗੇੜਦਾ ਵਾਰਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਖੂਹ ਪਿਆ ਵਾਰਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਖੂਹ ਪਿਆ ਗੇੜਦਾ ਏ ਉਹ ਵਾਰਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗੀਤ ਪਿਆ ਗਾਵਦਾ ਏ ਕਿਤੇ ਸੰਗਲੀ ਸੱਠ ਕੇ ਓਏ ਸ਼ਗਨ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੰਜਲੀ ਪਿਆ ਵਜਾਮਦਾ ਏ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਸਤ ਅਲਸਤ ਹੋ ਜਾਮਦਾ ਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰੁੱਠੜੇ ਯਾਰ ਮਨਾਵਦਾ ਏ ਓਏ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਰਾ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਏ ਵਾਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਏ। Now we will uncover the early life of Hazrat Waris Shah Rahmatullah Alayh, learn about his upbringing, spiritual inclination, and the pivotal moments that shaped his journey towards Sufism. ज़माने में रवाज था सैयद वारिस शाह ने इब्तदाई तालीम अपने वालिद मोहतरम से हासिल की। और फिर मजीद तालीम हासिल करने के लिए आपने कसूर का रुख किया, जहां मस्जिद कोट शरीफ में आप हाफिज मखदूम गुलाम मुर्तज़ा के शागिर्द हुए। कसूर में हज़रत गुलाम मुर्तज़ा कसूरी की दरसगाह उस वक्त की अहम दरसगाहों में शुमार होती थी, जिसमें दूर दूर के तशनगाने इल्म अपनी इल्मी प्यास बुझाने हाजिर होते। सैयद वारिस शाह भी उस मदरसे में ज़ेर तालीम रहे। इस लिहाज से उन्हें बुल्ले शाह का हम मकतब होने की सादत नसीब हुई। कसूर से निकलकर सैयद वारिस शाह पाक पतन गए और वहां के सज्जादा नशीन के हाथ पर बैत की और बातनी फैज हासिल किया। बादशाह सैयद वारिस शाह ने मलका हांस के कस्बे को अपना मुस्तकिल ठिकाना बना लिया और वहीं पे आपने एक मस्जिद की इमामत संभाली और उस मस्जिद से मुल्हिका एक हुजरे में हीर वारिस शाह का लाफानी शाहकार मुकम्मल किया। वारिस शाह ने अपने दोस्तों या महबूब की फरमाइश पे बज़ाहिर इस इश्किया किस्से को मजाज के रंग में बयान करके इसको एक रूहानी रंग दे दिया। Delve into the literary genius of Hazrat Waris Shah Rahmatullah Alayh through his great work
Heer Ranjha. See the magic of this timeless love story and its spiritual hints. ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਤਨ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ, ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਤਨ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ, ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਤਨ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਵਾਰਸ ਚੰਨ ਸਿਤਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਆਸ਼ਕ ਈਮਾਨ ਆਖਣ ਹੋ। ਓਏ ਵਾਰਸ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਲਾਤੁਲ ਕਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਲਾਤੁਲ ਕਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰਸ ਉਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵਾਰਸ ਇੱਕ ਰੰਝੇਟੇ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦਵਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। Examine the enduring impact of Hazrat Waris Shah's teachings and poetry on Sufi philosophy. Discover how his words continue to resonate with seekers and lovers of Sufi literature. सैयद वारिस शाह का किस्सा हीर 1766 में पाया तकमील को पहुंचा। कहानी हीर के ड्रामाई वाक़यात, किरदारों की नफ्सियात और मुकालमों की बरजस्तगी ने उसकी अज़मत को चार चांद लगा दिए हैं। कहीं संजीदगी, कहीं शोखी, कहीं नमकीनी तो कहीं लोक दानिश यानी फोक विजडम, कहीं फ़िक्र फ़लसफ़ा तो कहीं तंज़ो मिज़ाह, कहीं फ़िक्र तो कहीं तसव्वुफ़, कहीं सादगी तो कहीं पुरकारी, कहीं इश्क़ व मस्ती तो कहीं हकीकत परस्ती। डॉक्टर फातिमा हुसैन ने अपने एक मकाले में हीर वारिस शाह की फ़न्नी खूबियों का जायज़ा लेते हुए इस अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई है। This is the fact that by the time Waris Shah was writing, European works of Aristotle, Plato, and others had become known in South Asia. This might also have had a profound influence on Waris Shah's work. However, his Heer is by no means a case of mechanical appropriation of Western thought. वारिस शाह को पंजाबी अदब का शेक्सपियर कहा जाता है, मगर आज तक किसी रवायत में ये मालूम नहीं हो सका कि पंजाबी अदब का शेक्सपियर किस बिना पे, किस बुनियाद पे। मेरा ख़्याल ये है कि शेक्सपियर ने भी अपने तमाम तर ड्रामे तारीख़ से अख़ज़ किए, तमाम किरदार वहीं से लिए, और वारिस शाह का तरीक़ेकार भी यही रहा कि उन्होंने तारीख़ से किरदारों को अख़ज़ करके ड्रामे का प्लाट तैयार किया और एक रोमानवी किस्सा हीर रांझा को अपने मंजूम किस्से का मौजू। शाह ने हीर वारिस शाह के अलावा और भी कई किताबें तख्लीक की, कई तराजुम भी किए, जिनमें कसीदा बुर्दा शरीफ का मंजूम तर्जुमा बड़ी अहमियत का हामिल है। आपकी दीगर तख्लीकात में सी हरफी, दौड़े, मिराजनामा, इब्रतनामा और सस्सी पुन्नू शामिल हैं। इन तख्लीकात के सरमाए में से बेशतर नायाब हो चुकी हैं। मारूफ सूफी शायर और सैफुल मलूक के खालिक मियाँ मोहम्मद बख्श ने सैयद वारिस शाह को खराज तहसीन पेश करते हुए अपनी शोहरा आफाक तख्लीक में लिखा है।
ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸੁਖਨ ਦਾ ਵਾਰਸ ਨਿੰਦੇ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਫ ਦੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਤਰਨੀ ਨਾਈ ਕਦਰ ਅਸਾਨੂੰ ਹਰਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਤਰਨੀ ਨਾਈ ਕਦਰ ਅਸਾਨੂੰ। सैयद वारिस शाह की फन्नी पुख्तगी का एतराफ़ सिर्फ पंजाब के शोरा और नाकदीन ने ही नहीं किया, बल्कि दीगर ज़ुबानों के शोरा और अदबी नाकदीन ने भी सैयद वारिस शाह की फन्नी मेराज को तस्लीम किया है। सुनाया रात को किस्सा जो हीर रांझे का, तो अहले दर्द को पंजाबियों ने लूट लिया। सैयद अब्दुल हमीद अदम ने सैयद वारिस शाह को खिराज अकीदत पेश करते हुए क्या खूबसूरत पैराया इख्तियार किया है। यार तूने जो हीर लिखी है, आयते बेनज़ीर लिखी है, पर्दाए मसलहत को सरका कर दास्ताने ज़मीर लिखी है। हीर की दास्तान की वुसअत के बारे में वो कहता है, वारिसा तेरे शेर दरिया हैं, वारिसा तेरे शेर दरिया हैं, वारिसा तेरे शेर सहरा हैं, फ़क्र के पुरवकार टीले पर सिद्ध के चांद जलवार। रांझे वांग फरहाद दे आह कठी, जान गई सो हो हवा मियां। वारिस शाह इस ख्वाब सराय अंदर, कई वाजड़े गए वजह मियां। हीर वारिस शाह शायरी की उन अजीम किताबों में से है जो इंसान को अंदर से बदल देती है। इसकी असर आफरीनी इंसान के रेशे रेशे में समा जाती है। वारिस शाह के बाद क़ारीन और सामीन यहाँ तक कहते हैं कि इसकी तासीर आदमी की हड्डियों में रच बस जाती है और उसे अंदर से मुनकलिब कर देती है। सैयद वारिस शाह ने भी मकूला शायर के तौर पर अपने इल्म फजल और फन्नी महारत के बेपनाह जौहर दिखाए। वारिस शाह ने पूरी फिलॉसफी बयान कर दी है पंजाब के कल्चर की कि बोली हीर वेड़िया जा साथों, कोई खुशी ना होवे ते हसीए क्यों, परदेसियां जोगियां कमलियां नूं विचों जीव दा भेचा दसीए क्यों, जे तां जफा ना जालिया जाए जोगी जोग पंथ विच आके तसीए क्यों, फकर भारड़े गोरड़े हो रहीए कुड़ी चिड़ी दे नाल खर खसीए क्यों, जे तू अंतरना वालों वेखना सी वाही जोतरे छड़ के नसीए क्यों, ते वारिस शाह उजाड़ के वसदियां नूं आप खैर दे नाल फिर। हीर वारिस शाह एक ऐसा एपिक है, एक ऐसा समंदर है जिसकी तह से सदियों नए मोती निकलते रहेंगे और इस शाहकार पर तनकीद, तहसीन और तहकीक का सिलसिला हर अहद में होता रहेगा। सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह गो के पंजाबी ज़बान के शायर ने, अदीब ने, लेकिन उन्हों की किताब तो पढ़न तो बाद इज़हार होंदा है कि अदबियात आलम के मुकाबले दे विच उन्हों की किताब तो उन्हों की शख्सियत अपने नाल ना किसी हम असर का मुकाबला है उन्हों का, ना उन्होंने कलाम का ही किसी दे नाल मुकाबला किया जा सकता है। कि पंजाबी ज़बान अपनी पूरी निखरता ते महानता दे नाल इस अदीब ते शायर की किताब दे विच फखर ते अपना मान ते गुमान नाल रज्जी पई है। ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਮਿਸਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਝੋਲ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਰ ਹਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਆਬੋ ਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਨਵੀਰ ਦੀਆਂ ਲੱਫਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਰੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਰਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
He was a benefactor of humanity. He was a thinker and a philosopher. He is to be ranked alongside Goethe. He is to be ranked alongside Tolstoy. He is to be ranked alongside our own great Iqbal. He is to be ranked alongside Ghalib. He is to be ranked alongside Rumi, Attar, and others, Sadi, because this is the level that it has been achieved in Heer Waris Shah. सैयद वारिस शाह के मज़ार पर 23, 24 और 25 जुलाई को उर्स मुनक्कद होता है। उर्स पर पूरे मुल्क और बैरून मुल्क से लाखों ज़ायरीन हीर वारिस शाह के खालिक से अपनी अकीदत का इजहार करने जौक दर जौक चले आते हैं। सैयद वारिस शाह के मज़ार को अब सैयद वारिस शाह कॉम्प्लेक्स का नाम दे दिया गया है। ये कॉम्प्लेक्स 64 कनाल रकबे पर फैला हुआ है। ये इमारत सैयद वारिस शाह मेमोरियल कमेटी ने 1983 में मुकम्मल करवाई। ये कॉम्प्लेक्स मज़ार शरीफ, लाइब्रेरी, हीर खानी स्टेज और कॉम्प्लेक्स के बैरूनी हिस्से में 17 दुकानों पर मुश्तमिल है। सैयद वारिस शाह के फ़न शेर में ज़िंदगी का हर शोबा इश्क से फैज़ हासिल करता नज़र आता है, और सैयद वारिस शाह की हीर भी यही कहती है और यही समझाती नज़र आती है कि इश्क के खूगर को ताईद इज़्ज़ती हासिल हो जाती है। ज़माना कायनात की हर शय को फ़ना और तबाह कर सकता है, मगर इश्क को ख़त्म नहीं कर सकता, इश्क को फ़ना नहीं कर सकता। As we conclude this journey into the spiritual wisdom of Hazrat Waris Shah Rahmatullah Alayh, let's carry the lights of his teachings in our heart. Like, share and subscribe to spread the spiritual enlightenment of the great Sufi saints. Thank you for joining us on this exploration of divine legacy. Until next time, may the blessings of Allah Almighty and love of Waris Shah Rahmatullah Alayh be with you. Allah Hafiz.